Hello everybody, welcome to Matrix Science Academy. So as you all know, from today onwards we are going to start with a one-shot revision lectures for the subject Information Technology. In this one-shot revision lectures, we are going to cover all the 6 chapters based on the subject Information Technology. Just note one thing, before going through this one-shot revision lectures, you must read the textbook carefully, you must have understood the concept, then only we can start the one-shot revision. This is just a revision lecture for your board exam preparation. चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले with the first chapter, that is Advanced Web Designing. This chapter is a chapter which is having the highest weightage in the board exam, that is for 20 marks. Out of 80 marks, 20 marks is reserved for advanced web designing, and this chapter is there for the science students as well as this chapter is there for the commerce students. So let's start the chapter in detail. So before starting the chapter, we must know the paper pattern for the subject information technology. अपने आईटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है? सी आपका जो 80 मार्क्स होता है, 80 मार्क्स का आपको रहेगा ऑनलाइन एग्जाम. Okay, so 80 marks you will be having the online exam, and the 20 marks is your practical exam marks. So I hope so all the students have completed with your practical exam, so no need to worry about it. आपने डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया रहेगा एंड आपको ये कॉलेज के लेवल पे 20 मार्क्स मिल गए रहेंगे. सो इसके बारे में भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है. आवर फुल टारगेट एंड आवर कंप्लीट फोकस विल बी ऑन दिस 80 मार्क्स बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द एग्जाम फॉर दिस 80 मार्क्स. हम लोग अभी ये 80 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट आईटी एग्जाम इज कंडक्टेड इन योर कॉलेज लैब. आपके कॉलेज के आईटी लैब में ही आईटी का एग्जाम कंडक्ट होता है एंड ये ऑनलाइन बेस्ड होता है. सो आप मतलब बोर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, सो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना विद द सीट नंबर एंड आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. राइट, अभी 80 मार्क्स में इसका बाइफरकेशन कैसा होता है? 80 मार्क्स में देखो 60 मार्क्स, 80 मार्क्स में आपके 60 मार्क्स इज रिजर्व फॉर ऑब्जेक्टिव्स. सो 60 मार्क्स इज रिजर्व फॉर द ऑब्जेक्टिव्स एंड 20 मार्क्स का आपको मिलेगा आंसर द फॉलोइंग. मींस आंसर द फॉलोइंग आपको 10 मार्क्स के लिए मिलेगा एंड प्रोग्राम. For the science students, this can be the HTML and JavaScript program. For the commerce students, here there will be only the HTML program. Both the program will be HTML for commerce. And for science students, this is HTML and JavaScript. आपको एक HTML का प्रोग्राम अटेम्प्ट करना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए और एक JavaScript का प्रोग्राम अटेम्प्ट करने का 5 मार्क्स के लिए. Now, how is the marks distribution? See, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, that is the fill in the blanks. So question number 1, fill in the blanks. And my dear friends, fill in the blanks can give you the 10 marks. आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स देगा. उसके बाद वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ट्रू और फॉल्स. अरे यार, ट्रू और फॉल्स, बस आपको ट्रू है कि फॉल्स है, जो भी गिवन स्टेटमेंट रहेगा वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बस उतना ही गेस करना है. अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, आप इजीली गेस कर पाओगे एंड दिस ट्रू और फॉल्स इज गोइंग टू गिव यू द 10 मार्क्स. Then we come to question number 3. Question number 3 we have MCQ, one correct answer. एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. Like this 10 questions are there, so this is going to give you the 10 marks. We come to question number 4. Question number 4 we have again MCQ, but this time you have MCQ 2 correct answers. Yes, in IT we have MCQ which can have 2 right answers. अगर आपने एंड इसमें 10 क्वेश्चन से रहेगा, राइट. सो हियर यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 2 मार्क्स. सो एवरीबॉडी नोस 10 2s are 20. सो आपको देखो 20 मार्क्स इज नॉट अ जोक माय डियर फ्रेंड्स. प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. इधर की एक मार्क्स भी आपके कम किधर नहीं होने चाहिए, राइट. सो आपको MCQ 2 करेक्ट आंसर्स में मिलेगा 20 मार्क्स. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अगेन वी हैव MCQ, but this time it is MCQ 3 correct answer. Yes, MCQ 3 correct answers. मतलब आपको 3 right answers को choose करना है. Now some students may think कि हमने अगर 3 में से 2 राइट आंसर चूज किया तो क्या 2 मार्क्स मिलेगा. 3 में से एक राइट आंसर चूज किया, बाकी गलत हुए तो 1 मार्क्स मिलेगा. और अगर आपका एक भी आंसर
राइट नहीं है तो 0 मार्क्स मिलेगा। बट प्रिपरेशन आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आप पूरे वन शॉट लेक्चर्स में ना अटेंटिव रहो, आपको डेफिनेटली स्कोरिंग इजी रहेगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर एक्चुअली 6 मार्क्स। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू 3 करेक्ट आंसर में आपको बोर्ड एग्जाम में 2 ही क्वेश्चंस रहेगा, each question for 3 marks, 3 2s are 6 marks, right? Then we come to the question number 6, match the following। अरे यार ये सब बचपन की यादें दिला रहे, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, फिर द ब्लैंक्स। देखो आईटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इजीली स्कोर कर पाओगे। राइट, मैच द फॉलोइंग जो बचपन में आप बहुत अच्छे से करते थे, राइट, इधर भी वही करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग इज फॉर 4 मार्क्स, बस 4 पेयर्स को राइटली मैच करना है। 1 2 3 4 ABCD। 1 का पेयर क्या है, 2 का पेयर क्या है, ठीक है, प्यार नहीं होता है, पैर होता है। ठीक है, ओके, सो इट इज मैच द पेयर्स और मैच द फॉलोइंग। ठीक है, राइट, सो यहाँ पे आपको 4 पेयर्स को मैच करना है। अगर आपने चारों पेयर्स को अगर अच्छे से मैच कर दिया तो आपको मिल गए 4 मार्क्स। सो काउंट करते, चलो माय डियर फ्रेंड्स काउंट करते, 10 20 30 40 50 एंड 60। देखो 60 मार्क्स आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही मिलेगा। 60 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के 60 मार्क्स सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव से देगा। सो बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, टेक्स्ट बुक थोरोली पढ़ना है, टीपीएस अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये मार्क्स इजीली मिल जाएगा। एंड वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज द आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा ना दैट इज द आंसर द फॉलोइंग। सो आंसर द फॉलोइंग आपको 10 मार्क्स के लिए रहेगा। यहाँ पे भी माय डियर फ्रेंड्स हमें क्वेश्चंस पता है, आंसर द फॉलोइंग के भी हमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पता है। सो उसको बस हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे कि ट्रेड साइकिल, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, राइट, टाइप्स ऑफ एसईओ, व्हाट आर द टेक्निक्स इन एसईओ। अरे यही क्वेश्चंस आपके पेपर में है यार, यही क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चंस पता है, सो प्रिपरेशन बस हमें अच्छे से करना है, बाकी क्वेश्चंस तो हमें पता ही है। एंड वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा दैट इज आवर प्रोग्राम। सो प्रोग्राम में यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। सो आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ईच प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर 5 मार्क्स, 5 2s are you will get the 10 मार्क्स। अभी साइंस स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूं, साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोग्राम में एक HTML का प्रोग्राम रहेगा और दूसरा आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर कोई सुन रहा है उनके लिए भी पूरा सेम है, एवरीथिंग इज सेम फॉर देम आल्सो। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स यू हैव both the code HTML, you don't have JavaScript, but science students remember you have HTML 1 code for 5 marks, JavaScript 1 code for 5 marks, so 5 5 10 marks. So this is your paper pattern my dear friends. So paper pattern में आपने एक जगह नोटिस किया रहेगा तो आपको ज्यादा मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पे कौन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव्स। सो आवर मेन इंटेंशन, आवर मेन पर्पस इज टू प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव्स एट आवर लेवल बेस्ट एंड गिव द बेस्ट इन आवर बोर्ड एग्जाम एंड वी कैन स्कोर द 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? चलो, सो ये पेपर पैटर्न अगर आपको क्लियर है तो वी कैन मूव फर्दर, वी विल मूव फर्दर। चलो, सो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 दैट इज एडवांस वेब डिजाइनिंग। दिस इज फॉर 12th साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमर्स का कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो ये सेम लेक्चर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है, आपका टेक्स्ट बुक भी सेम है, सब कुछ सेम है साइंस एंड कॉमर्स में फर्स्ट चैप्टर के लिए, राइट। सो 12th साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ वन शॉट रिवीजन लेक्चर। हम लोग अभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस इज अ वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स। पूरा चैप्टर को हम लोग डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं विद द कोडिंग ऑल्सो। जो बोर्ड एग्जाम में कोडिंग पूछा है वो भी हम लोग आज रिवाइज करने वाले, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग एवरीबॉडी, माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, बात सुनना पड़ेगा आपको आज, और आप सुनने वाले बच्चे हो, राइट। सो सुन लो मेरी बात। बिफोर स्टार्टिंग आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपके साथ नोटबुक भी रखना है, राइटिंग मटेरियल रखना है, आपका आईडी टेक्स्ट बुक रखना है। यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करें साइमल्टेनियसली यू हैव टू कीप योर टेक्स्ट बुक, यू हैव टू कीप योर नोटबुक। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। एंड जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप मतलब मेरा सॉल्यूशन आने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और आप भी उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करना। सो यू आल्सो ट्राई टू सॉल्व इट बिकॉज व्हेन यू सॉल्व बाय योर ओन एंड इफ योर आंसर इज राइट यू कैन सॉल्व द आंसर इन द बोर्ड एग्जाम टू। इज दैट क्लियर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट।
So we'll go to the next slide. So इस चैप्टर का वेटेज पहले डिस्कस कर लेते हैं. एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर में टोटल दिस चैप्टर इज फॉर 20 मार्क्स. एज आई टोल्ड यू 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स का वेटेज है आपके एडवांस वेब डिजाइनिंग. इस चैप्टर को टोटल वेटेज कितना है? 20 मार्क्स का वेटेज है माय डियर फ्रेंड्स. अभी 20 मार्क्स भी कैसे बाइफरकेट होता है देखो. 2 फिल द ब्लैंक्स रहेगा, टू फिल द ब्लैंक्स रहेगा, एक ट्रू और फॉल्स रहेगा. एमसीक्यू सिंगल करेक्ट आंसर 2 क्वेश्चन 2 मार्क. एमसीक्यू 2 करेक्ट आंसर 2 क्वेश्चन 6 मार्क. Right, 3 क्वेश्चन रहेगा पे. So here how many questions are there? 3 questions. 3 questions are there. Each question for 2 marks. So here 3 2s are here. You'll get the 6 marks. So यहाँ पे आपको 6 marks मिलेगा. Match the following. एक पेयर 4 पेयर्स में से एक पेयर आपका रहेगा. Match the following and HTML कोडिंग 5 marks. आपने एक चीज नोटिस किया क्या फ्रेंड्स? आंसर द फॉलोइंग किधर है? आंसर द फॉलोइंग किधर गया? अरे इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर देयर इज नो आंसर द फॉलोइंग. You don't need to focus answer the following in this chapter. No need to focus because from this chapter there is no answer the following coming in the board exam. So आपको इस चैप्टर का आंसर फॉलोइंग प्रिपेयर करना ही नहीं है. Right? So only these many points you have to follow, only these many things you have to understand, and we will start the revision. Okay? So I hope so the paper pattern is clear. The weightage for this chapter is also clear. Chalo, so let's start. सबसे पहला कंसेप्ट, द फर्स्ट कंसेप्ट इन द चैप्टर एडवांस वेब डिजाइनिंग इज योर फॉर्म. सो व्हाट इज फॉर्म इन HTML एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म इन डिटेल. चलो हम पहले ना कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज फॉर्म इन HTML इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग. ठीक है. सो हम लोग पहले कोडिंग करके समझ लेते हैं कि बाबा ये कंसेप्ट क्या है, फॉर्म क्या है, HTML में फॉर्म कैसे बनाना है, बेसिक टैग्स क्या होता है. एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन द लेक्चर, सो प्लीज पे अटेंशन. सो we are going to create form in HTML. So how to create the form in HTML, right? So ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया है, बस ये रिवीजन है आपके लिए, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक टैग्स. सो फर्स्ट वी राइट द HTML tag, right? After HTML tag we write the head tag, then we write the title tag. टाइटल के अंदर आपको कुछ तो टाइटल देना पड़ेगा ना, जो आपके टाइटल बार में डिस्प्ले होगा. यहाँ पे आप टाइटल जो भी दोगे दैट विल बी डिस्प्लेड इन योर टाइटल बार. सो यहाँ पे सिंपली मैं बोल देता हूँ फॉर्म. सो ये फॉर्म का कंटेंट जो है ये एज इट इज मेरे टाइटल बार में आ जाएगा, राइट. तो टाइटल टैग रूल क्या बोलता है? टाइटल क्लोज होती है आपका, हेड टैग क्लोज होना चाहिए. दिस इज द रूल. देन वी हैव टू ओपन द बॉडी टैग, राइट. सो देन वी हैव टू ओपन द बॉडी टैग. सो अभी हमने जो भी लिखा है, सो दीस टैग्स आर कॉल्ड एज द basic tags, and everybody knows why we call these tags as the basic tags, because आप HTML का कोई भी कोडिंग करो, these tags are common in all the coding, so these tags are called as the basic tags. HTML tag indicates the start of the HTML element. Head tag is used for the cascading style sheets, right? अब भी cascading style sheet हम लोग को डिफाइन नहीं करना है. मेटा टैग हम लोग हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, अब भी ऐसा कुछ डिफाइन करना नहीं है. So we have not made the use of the head tag. Title, the content of title will be displayed in your title bar, and body tag is the actual layout of your website where all the contents will be displayed. So we have to create the form, right? So to create the form we have to give the form tag. So हम क्या करते हैं ना, ये तो basics है, right? हमें एक ऐसा फॉर्म बनाना है. We will create a form like this, like student form बनाएगा, एक login ID बनाएंगे. चलो, so हम एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे login ID, right? Login ID. Here the user will enter the login ID, and here we'll keep a password. I'm just showing a small demo about the form, right? Password. So password enter करने के लिए यहाँ पे फील्ड रखेंगे, and we will keep a submit button, right? एक submit button रखेंगे so that the user can submit the form, and एक restart button रख देते. चलो restart button रख देते. So restart नहीं, यहाँ पे हमें reset रखना पड़ेगा, ठीक है. reset to clear the contents of form. So reset क्या करेगा? फॉर्म के कंटेंट्स को क्लियर करेगा. सो ये फॉर्म हमें अभी क्रिएट करना है बाय यूजिंग HTML. सो बाय यूजिंग HTML वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फॉर्म. चलो, सो फॉर्म टैग ओपन करते ही हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हमें फॉर्म बनाना है, राइट. सो सबसे पहले क्या बनाना है? लॉगिन आईडी, ठीक है. चलो अभी हमारा कोडिंग चलेगा दैट विल 100% बेस्ड फॉर द आउटपुट. ये तो बेसिक्स है, ठीक है. कोई भी फॉर्म बनाना है तो आपको यहां तक तो आना ही पड़ेगा. उसके बाद हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? लॉगिन आईडी. सो फर्स्ट we have to write here login ID. So login ID एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूजर से. So login ID एक्सेप्ट करने के लिए we have to make a box. So which
tag can be used to make a or to give a box where the user can enter the ID. So we all know in form we have the input elements. By input elements we can make the form interactive, right? हम input element से अपना form को interactive बना सकते हैं. अभी यहाँ पे हमें क्या एक्सेप्ट करना है? ID. ID means in numbers. ID cannot be in text mostly. अगर आपको name एक्सेप्ट करना रहेगा तो we can give input type is equal to text. अगर आपको कोई नंबर जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर या आपका लॉगिन आईडी, रोल नंबर, ऐसे कोई फील्ड्स आपको बनाना है तो देयर यू हैव टू गिव इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, बिकॉज नंबर ही वो फील्ड एक्सेप्ट करेगा. नंबर के अलावा हम और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? सो लॉगिन आईडी, सो आफ्टर लॉगिन आईडी यू हैव टू राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. So after giving input type is equal to number, I can accept only the number inside this box. If I try to enter any text, that will not be accepted because I have given an input element as number, right? Input type. So input is a tag, this type is an attribute, and this number is a value. इसको ऐसे याद रखना, ठीक है? चलो. After that, on the next line, चलो ये तो हमने complete कर लिया. Now we have to go to the next line. So how to go to the next line? Everybody knows, right? Break tag. Very good. Break tag. So break tag is an empty tag which can be opened but cannot be closed, right? So password PASSWORD. पहले पासवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक बॉक्स रहेगा जहां पे हम पासवर्ड को एंटर करेंगे. सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू डोंट गिव योर टेक्स्ट, डोंट गिव योर नंबर. पासवर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए आपको पासवर्ड ही लिखना पड़ेगा. What will happen if you give the number or text? जब यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर करेगा ना, that will be visible to everybody. But have you noticed while login, when you log in your Gmail, when you log in any of the account, right? When you enter the password, it comes like this. जब भी पासवर्ड एंटर करते हो वो ऐसे आना चाहिए ना, डॉट फॉर्म में. मतलब आप जो एंटर कर रहे हो वो किसी को दिखना नहीं चाहिए. सो अगर आपको ऐसे, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट लाइक दिस, सो यू कैन गिव इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड. आफ्टर गिविंग दिस फील्ड, व्हेन यू एंटर द पासवर्ड, दैट विल बी द डॉटेड फॉर्म, राइट? दैट पासवर्ड विल नॉट बी विजिबल टू द अदर्स. चलो, देन वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट लाइन. ये भी डन. नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें सबमिट बटन क्रिएट करना है. सो अगेन हियर वी हैव टू गिव द ब्रेक टैग. Submit button. Everybody knows the tag, right? Already we have discussed this in the 11th standard. We have done this in the 12th standard. Now this is the revision lectures. In revision lectures you must know. मैं लिखने से पहले आपको guess करने आना चाहिए, right? चलो. So यहाँ पे हमें submit button create करना है. So which tag is used to create a submit button? Very simple. Yes, input type is equal to submit. So input type is equal to submit देने से अपना submit button create हो जाएगा. उसके बाद हमें break देना नहीं है, तुरंत उसके बाद हमें reset button create करना है. Again I can write input type is equal to reset. ठीक है? अभी यहाँ पे break क्यों नहीं दिया? My dear friends, why I have avoided the break here? Because you can see submit button. Just near the submit button we have the reset button. So if I give the break, this reset button is going to come down. So I don't want that. So I put a reset. Done with the coding. So we have to also close the tags. Very important. Whatever tags we have opened, the tags has to be closed. The tag which we have opened last has to be closed first. So let's see which tag we have opened last. That is form tag. So first we have to close the form tag. So पहले हमें form tag close करना पड़ेगा. After form tag we have to close the body tag. We have to close the body tag, and at last we will close the HTML tag, and at last we have closed the HTML tag. Done with the coding, right? So this is a login form, and we have created the login form. So like these questions mostly come in your exams for 5 marks. To create a login form, to create a student registration form, to create an employee form. So like these forms comes in your exams for 5 marks, and everybody know, right, how to save the code and see the output. अगर किसी को पता नहीं है ये कोड को सेव करके इसका आउटपुट कैसे देखना है, एक्चुअल में ये फॉर्म आपको कैसे देखना है ब्राउजर के अंदर, ऑलरेडी मेनी वीडियोस आई हैव मेड प्रीवियसली. आई हैव शेयर्ड माय लैपटॉप स्क्रीन एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके डाला है. आप HTML फॉर्म कैसे बना सकते हो, HTML टेबल कैसे बना सकते हो, इमेज कैसे ऐड कर सकते हो, वीडियो कैसे ऐड कर सकते हो, ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हो, हाइपरलिंक कैसे बना सकते हो, स्टाइल टैग्स क्या होता है. ऑल द वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्रीवियस प्लेलिस्ट. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. मैंने वहां पे लाइव लैपटॉप पे ये सब कोडिंग करके रन करके भी दिखाया है, ठीक है? बट फॉर योर IT ऑनलाइन एग्जाम nobody is going to run the code. They are just going to see the code. If the code लॉजिक इज राइट, यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है? सो अभी से आप कंसेप्ट समझो और एग्जाम में एज इट इज कोडिंग करने का कोशिश करना, ठीक है? चलो, सो नाउ
So now we will go to the PPT. चलो, so हमको ये समझना था, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, राइट? So now we'll understand this point in detail. Okay. So you can see these are the form elements. हमने अभी इनपुट एलिमेंट्स को यूज किया था, यार इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल रीसेट. So these all are the input elements. So here now actually we have made the use of the input elements. So by using the input elements we have created our form. There are more lot of input elements. अगर आपको आपका फॉर्म का कलर चेंज करना है, if you want to change the color of a form, you can use input type is called color. If you want to accept the URL का full form बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं. URL stands for dash. This question in the board exam comes a lot of times. I have seen this question in the board exam asking many times. So please note the full form in your notebook. URL stands for Uniform Resource Locator. Right, this is the full form. Uniform Resource Locator means URL. Input type is called date. In the form, if you want to accept date, you have to give input type is called date, input type is called month, input type is called date time, local. अगर आपको कोई date and time accept करना है, you will get the timer. So वो timer से आप date and time को accept कर सकते हो, AM PM select कर सकते हो आपके form के अंदर. Input type is called week. You can select the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ऐसे आपको एक लिस्ट मिलेगा, उसमें से आप week select कर सकते हो. Input type is called file. There you will get a option to upload any file. जैसे कि आप जब Google form भरते हो, it asks you upload your photo, upload your signature. So that can be done with the help of input type is called file. Input type is called number. जैसे कि contact number, phone number, ये सब अगर आपको लेना रहेगा, login ID आपको लेना रहेगा, ID, right? So you can take input type number. अभी ID में text भी हो सकता है, right? So आप ID में कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, so वहां पे आप input type is equal to text भी दे सकते हो, ठीक है? Input type is equal to image to add an image in your form. Input type is equal to email to accept an email. This is going to check for the this is going to check for the @ and full stop. अगर ये @ और full stop नहीं रहेगा तो आपको एरर मिलेगा. Input type is called range. For example, when we enter the contact number, अभी contact number कितने digits का होता है? 10 digits. But some users can enter the contact number more than 10 digits. How can we control that? So we can specify the range. So I can give 0 to 9, or I can give 1 to 10. Means I can specify the range and I can accept only and only 10 digits. Input type is called time, where we can accept the time. Input type is equal to search, where we can give a search bar where user can search any content in the form. Input type is equal to file, to upload any file. Input type is equal to tel. Tel means telephone number. This is very rarely used. And ये जो भी tags है ना my dear friends, ये जो भी input elements है ना, input elements के ऊपर कुछ restrictions हम लगा सकते हैं, right? कुछ input elements के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? Restrictions लगा सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला input type is equal to text, उसके सामने मैंने अगर लिखा disable, मतलब आपको ऐसे box तो दिखाई देगा, but you cannot enter anything inside the box because there is a restriction or there is an attribute used called as disabled, right? After that we have max. For example, I want to enter the maximum value as 40. So this box is only going to accept the value till 40. What will happen here if you enter 50? अगर आप 50 enter करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपको error मिलेगा कि please enter a valid input. Minimum, मतलब मिनिमम उस बॉक्स के अंदर उतना वैल्यू होना चाहिए. Pattern, read only, placeholder, required. Required means what? Many of the times you have, while filling the Google forms and all, you have seen like a star. ऐसे नहीं, आपने mostly से red color में star देखा रहेगा, right? So like इस in red color you might have seen the star. अगर red color तो नहीं है, ठीक है? Red color में आपने ऐसे star देखा रहेगा. Required means that field has to be compulsory filled. अगर आपने इसको fill नहीं किया तो आपका form आगे proceed नहीं हो पाएगा. So that is done with the help of the attribute called as required. So these all things, small things are asked in the board exam, my dear friends. आपको अगर out of marks IT में score करना है तो आपको हर एक concept, हर एक चीज पता होना चाहिए. Question कहीं से भी आ सकता है, right? Autocomplete means what? Next time when you log in the form, automatically the form will be filled up by the previous details which you have filled up. Autofocus, height, width, multiple. So these all are the input restrictions. ये सारे के सारे input restrictions है. ये सारे input restrictions आपको input element के अंदर use कर सकते हैं. Okay, I hope so. Form elements is clear to everybody. चलो, now, as I told you, 5 marks का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं. ये चैप्टर के ऊपर आपको HTML के ऊपर 5 marks का क्वेश्चन पूछता है. Now the 5 marks question, my dear friends, can be asked on form
एक तो फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सीएसएस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इनलाइन फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी सीएसएस बोलने के बाद इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ऑल द 3 टाइप्स, कोई भी टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। सो दिस इज द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप अगर चाहो टीपीएस को भी रेफर कर सकते हो। सो दिस इज एग्जैक्टली द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन व्हिच आई हैव ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू। सी, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स इन द ईयर मार्च 2022 and in the year March 2023, and maximum probability is there that this question can be asked in your exam too, that is March 2024. So pay attention carefully. I will just show you the solution for this question. चलो, so हम लोग इसका solution start करते हैं, ठीक है? चलो, so इसका solution क्या रहेगा? पहले question read कर लेते हैं. Write a HTML program to create form. So देखो यहाँ पे उन्होंने क्या create करने बोला है? Form to accept student roll number. हमें student का roll number accept करना है. Bracket में उन्होंने कुछ conditions भी दिया है. So they have given some conditions. We have to do the coding based on the conditions, right? So they have given a condition in number format, unit test marks, again condition, मतलब minimum 30 marks होना चाहिए, terminal exam marks maximum 80 होना चाहिए, 80 के ऊपर marks अपना form accept नहीं करेगा. Include the name of the subject teacher, means सब्जेक्ट टीचर का नाम इंक्लूड करना नहीं, आपको एक फील्ड एंटर करना है, वहां पे सब्जेक्ट टीचर का नाम एंटर कर सकते हो, ऐसे फील्ड इंक्लूड करना है. डोंट एंटर योर आईटी टीचर मार्क्स, डोंट एंटर योर आईटी टीचर नेम, राइट? सो एज पर द बोर्ड रूल्स वी कैन नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एनी कॉलेज इंफॉर्मेशन इनसाइड योर बोर्ड एग्जाम. अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर चेक नहीं होगा. एवरीबॉडी नोस, मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये सब इंसिडेंट क्लासरूम में शेयर किया, राइट? सो नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एचएससी बोर्ड examination, right? So here they have told name of the subject teacher, means you have to give a box where we can enter the name and send the data to the server. So ये डेटा कहाँ पे जाना चाहिए? सर्वर को जाना चाहिए. So कोई भी डेटा सर्वर को भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबमिट बटन. So submit button will send the data to the server. चलो, so let's start the coding. So we'll start the coding now. चलो, so first we have to start the coding the basic tags. चलो, सबसे पहला टैग HTML. एक काम करते, कलर थोड़ा अलग कलर लेते हैं. चलो, so सबसे पहले we have to write the HTML tag. After HTML tag we have to write the head tag. देखो basic tags के लिए marks था. For the basic tags also you have the marks. So don't skip the basic tags. HTML head, then we have to write the title tag. So title tag में give the form. हम क्या बनाते हैं? Form बनाते हैं, ठीक है? So close the title, right? Close the head tag. In the board exam आपको ऐसे आंसर लिखना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. बोर्ड एग्जाम में आपको अपने कंप्यूटर में आंसर टाइप करना है, राइट? सो आपको एग्जाम में टाइप करना है. ऑनलाइन एग्जाम होता है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है प्रोग्राम, वहां पे आपको आंसर्स टाइप करना होता है. आंसर द फॉलोइंग भी आपको टाइप करना होता है, ठीक है? चलो, टाइटल क्लोज होने के बाद आपका हेड क्लोज होगा. देन वी हैव टू ओपन द बॉडी टैग. आफ्टर ओपनिंग द बॉडी टैग वी हैव टू ओपन द फॉर्म टैग. बॉडी टैग ओपन होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म टैग को ओपन करना पड़ेगा. फॉर्म टैग, These are the basic tags, हमें पता ही था. चलो, अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला? क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट स्टूडेंट रोल नंबर. चलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टूडेंट रोल नंबर. सो रोल नंबर एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. सो हियर वी विल राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, सॉरी यहाँ पे मैं क्या एक्सेप्ट करना है बाबा? यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करना है. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. सो नंबर के अलावा वो फील्ड में हम और कोई चीज एक्सेप्ट कर नहीं सकते. इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. देन वी हैव टू गिव द ब्रेक टैग सो दैट वी कैन कम आउट द नेक्स्ट लाइन. अभी यहाँ पे कहीं मेंशन किया नहीं, ब्रेक टैग देना है करके. कॉमन सेंस है, राइट? फॉर्म क्रिएट करते वक्त अगर हमने ब्रेक टैग नहीं दिया तो ऑल द फॉर्म एलिमेंट्स विल गो इन वन लाइन. We don't want that, so you have to give the break tag, right? After giving the break tag, then next क्या बोला? Unit test marks, maximum 30. So here we'll write unit test marks, right? Now unit test marks, definitely that will be also in numbers. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? Input type is equal to number बोलेंगे, ठीक है? So यहाँ पे मैं क्या बोलना पड़ेगा? Input type is equal to number. बिकॉज मार्क्स है ना, मार्क्स नंबर में ही रहेगा ना, ठीक है? इनपुट टाइप इज इक्वल नंबर, मैक्सिमम 30. सो हियर आपको सिर्फ ऐड करना है मैक्स
मैंने आपको बोला ना एट्रीब्यूट्स था मैक्स, मिन, ऑटो कंप्लीट, रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस. सो दीज ऑल आर द इनपुट एलिमेंट्स के रेस्ट्रिक्शंस थे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स, मैक्सिमम कितना रखना है 30. सो हियर वी हैव टू गिव द वैल्यू 30. सो 30 के ऊपर हम यहाँ पे मार्क्स एंटर कर नहीं सकते, ठीक है. सो अगेन देन वी हैव टू गिव द ब्रेक टैग. हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, टर्मिनल एग्जाम मार्क्स. ओके, सो आई विल कंटिन्यू हियर, ठीक है. तो हमें टर्मिनल एग्जाम मार्क्स लिखना पड़ेगा. टर्मिनल एग्जाम, ठीक है, टर्मिनल एग्जाम marks. So terminal exam marks, again input type is equal to number and here it is given maximum 18. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, input type is equal to, I'll just continue here, ठीक है. काम करते हैं, मैं next line पे continue करता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास. So I'll just continue on the next line. Terminal exam marks, here right, input type is equal to number देना पड़ेगा, राइट, बिकॉज मार्क्स है, मार्क्स नंबर में एक्सेप्ट होगा. मैक्सिमम 80. सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैक्स इज इक्वल टू 80. मतलब 80 के ऊपर हम लोग मार्क्स एक्सेप्ट कर नहीं सकते. इंक्लूड नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर. चलो, सो नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर. सो आई वांट अ फील्ड व्हिच विल एक्सेप्ट द नेम. सो नेम टेक्स्ट, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप is equal to text. यहाँ पे कोई प्रिंट मत कर देना अपना आईटी टीचर का नाम प्रिंट मत कर देना, माय आईटी टीचर नेम इज दिस एंड दिस फ्रॉम दिस एंड दिस वाले ऐसे वगैरह कुछ प्रिंट कर दोगे ना, हालांकि सीन क्रिएट कर दोगे यार तुम लोग, ठीक है. सो बोर्ड एग्जाम में आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, राइट. सो बस आपको इतना करना है, नेम ऑफ द टीचर, देयर दे विल एंटर द टीचर्स नेम, ठीक है. यहाँ पे आपको ब्रेक देना पड़ेगा सो दैट दिस विल कम ऑन द नेक्स्ट टाइम. सो हियर यू कैन इंक्लूड द ब्रेक. सो यहाँ पे ब्रेक लिखा है, ठीक है. सो ब्रेक देने से ये आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगा, राइट. एंड और हमें क्या करना है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर एंड सेंड द डेटा टू द सर्वर. सो अगेन वी विल गिव द ब्रेक एंड देन वी विल राइट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट. सो सबमिट बटन से अपना डेटा जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, सर्वर पे चला जाएगा. बस डन विद द कोडिंग. सो टैग आपको क्लोज करना पड़ेगा. सो जो टैग अपने लास्ट में ओपन किया वो पहले क्लोज होगा. सो हियर यू हैव टू क्लोज द फॉर्म टैग. After closing the form tag, we have to close the body tag, and after close the body tag, we have to close the HTML tag. And after closing HTML tag, as you all know, HTML tag close होने के बाद हम लोग वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते. लिखा तो भी कंप्यूटर रीड नहीं करने वाला, ठीक है. So this is the solution for this question, and this question is been asked in the board exam for 5 marks. अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो. चलो, so after completing this, we can go to the next slide. हाँ, अभी बोर्ड एग्जाम में फॉर्म के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकता है, which questions can be asked regarding the form. So pay attention my dear friends. See, अरे क्वेश्चन पढ़ लो यार, क्वेश्चन पढ़ लो, कितना सिंपल. मतलब देखो, आप अगर थ्योरी समझोगे, थ्योरी समझ के लोगे, अगर आपने if you understand the concept in detail, let the question be of any type, let the question be of any level, you can solve it. So read the textbook, read the TPS, that's it. You can attempt all the questions, and these all are the board exam questions. You can see these all are the board exam questions. This is a board exam question. Question कैसे, the dash tag is used to create form. कौन सा tag यूज करते हैं हम लोग फॉर्म क्रिएट करने के लिए, फॉर्म टैग. बट लिसन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, द डैश टैग. क्वेश्चन में क्या बोला है, टैग बोला है. बट अगर किसी ने एग्जाम में ऐसे लिखा फॉर्म, that student will get the 0 marks. That student will get the 0 marks. Why? Because question क्या बोल रहा है my dear friends? देखो tag पूछा उन्होंने. Whenever in MCQs, whenever in fill in the blanks, whenever in fill in the blanks they mention the dash tag, you have to include the tag, not the content. Tag बोलने में तो क्या करना पड़ेगा? You have to add the triangular brackets. ठीक है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स आपको लिखना पड़ेगा. अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्म टैग ओपन कर सकते हो, फॉर्म टैग क्लोज कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस. बट इतना लिखा, टैग बोलने के बाद you have to write in the triangular bracket. So this includes your tag, right? So tag means it should be in the triangular brackets. Only you write the form, then that is not a tag, that is only just a content. But in question, what are they asking? Tag. So you have to compulsory include the triangular brackets, right? So form tag is used to create a form. Input tag is equal dash defines a color picker.
एंड आईटी में एक चीज नोटिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस में ही उसका आंसर छुपा रहेगा. इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट द आंसर व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, देयर विल बी द आंसर. सो रीड द टेक्स्ट बुक थरोली, रीड द टीपीएस थरोली. देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं यही चीज, बिकॉज़ कुछ नया नहीं आने वाला पेपर में. वी नो द कंप्लीट पेपर, राइट? द पेपर विल बी वेरी इजी. ओनली द थिंग इज यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू वर्क हार्ड. अगर बस आप टेक्स्ट बुक रीड करके ऐसे ही जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. सो रिवाइज द टीपीएस आल्सो, राइट? सो इनपुट टाइप इक्वल टू कलर. देखो क्वेश्चन में अपना आंसर था इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर. नंबर एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा रे बाबा? यहाँ पे नंबर ही तो देना पड़ेगा. फिर से क्वेश्चन में ही आंसर आ गया बाबा. सही है. इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग यूआरएल. क्वेश्चन में ही आंसर आ गया. यूआरएल बोलने के बाद आपको यूआरएल भी लिखना है, बट साथ साथ फुल फॉर्म भी लिखा तो अच्छा रहेगा. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस अ फील्ड, डिफाइंस अ इमेज एज सबमिट बटन. ठीक है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सबमिट बटन के ऊपर इमेज लाना है तो आपको देना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल इमेज. इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस अ डेट पिकर विद ईयर मंथ एंड डे. सो अगर आपने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट लिखा, सो डेट लिखने के बाद यू कैन गेट अ कैलेंडर ऑप्शन. सो यू विल गेट अ कैलेंडर ऑप्शन. सो कैलेंडर ऑप्शन में आप लोग पहले मंथ चूज, पहले ईयर चूज कर सकते हो, फिर आप मंथ चूज कर सकते हो एंड फिर आप डेट भी चूज कर सकते हो. ठीक है. चलो, इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग ईमेल. क्वेश्चन में ही आंसर. ठीक है. ईमेल. सो हियर यू हैव राइट ईमेल, राइट? इनपुट टाइप इक्वल डैश एंड डोंट ऐड द डबल कोट्स. देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी डबल कोट्स है तो आपको डबल कोट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है. एंड डोंट ऐड द टैग आल्सो. यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में टैग दिया. सो ये सब चीजें बहुत मैटर करेगा. इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस अ मंथ and year control in the format as YYYYMM, your month. So यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में ही आंसर है इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ. इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ देते ही आप लोग ऐसे फॉर्मेट में चूज कर सकते हो मंथ को. इनपुट टाइप इक्वल डैश डिफाइंस द रेंज कंट्रोल. कॉपी पेस्ट रेंज. इनपुट टाइप इक्वल टू dash defines a date picker that includes year, month and day. So year, month, day and time. So जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको चूज करना है डेट, टाइम, लोकल. और अगर आपने सिर्फ यहाँ पे डेट लिखा तो रॉन्ग है. अगर सिर्फ मंथ लिखा तो सिर्फ मंथ आएगा. बट यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए? ईयर भी चाहिए, मंथ भी चाहिए, डे भी चाहिए और टाइम भी चाहिए. सो दिस इज द राइट आंसर. सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो हियर यू हैव टू चूज डेट, टाइम, लोकल. डेट, टाइम डैश लोकल, राइट? सो See, now in DPS there are many questions, but मैं सारा questions यहाँ पे नहीं करवा सकता, उतना time consuming हो जाएगा, अपना वीडियो बहुत lengthy हो जाएगा. So I have given the PDF in the description of this video. You can download the PDF. The PDF contains all the MCQs which have been asked in the board exam previously. आपको वो सारे के सारे MCQs अच्छे से, MCQs fill in the blanks, true or false, everything is given in the PDF. Revise everything before going to the board exam. It is my guarantee to you, अगर आपने ऐसे सारे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन रिवाइज किया, आफ्टर रिवाइजिंग व्हेन यू गो टू द बोर्ड एग्जाम यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलो, सो बाकी का आपको इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना. ऑनेस्टली चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लेना और ऑनेस्टली उसको रिवाइज कर लेना. ठीक है. चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेटा. मेटा के ऊपर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है 1 मार्क्स के लिए बस. इसके ऊपर आपको आंसर फॉलोइंग नहीं है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू नहीं है, इसके ऊपर आपको कोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. बस आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स इसके ऊपर मैक्सिमम आ सकता है. और फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आता है पता है क्या? बस इतना ही रहेगा. फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ द फिल इन द ब्लैंक्स कम? डैश टैग used by search engine to search information that is provided within web page. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश टैग. तो ऐसे लिखना है क्या? नहीं, डैश टैग. सो वी हैव ट्राइड आंसर लाइक दिस. Meta tag. So you have to include it in the triangular brackets, right? So meta tag is used by the search engines to search information that is provided within the web page, right? So whenever we search any content on the Google, तो वेबसाइट के नीचे ना आपको उसका एक डिस्क्रिप्शन मिलता है. वो डिस्क्रिप्शन वेबसाइट के नीचे ऐड कैसे करने का? by using the meta tag. And meta tag is declared in the head section. ठीक है. हेड टैग के अंदर डिस्प्ले करते हैं. मेटा को हम लोग हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं. ठीक है. मेटा टैग इज डिफाइंड इनसाइड द हेड टैग. ये भी आपको पता होना चाहिए. मेटा टैग इज डिफाइंड इनसाइड द हेड टैग एंड मेटा टैग इज अ एम्प्टी टैग. मेटा टैग इज नॉट एम्प्टी टैग. मेटा टैग को हम ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हैं. ठीक है. चलो, सो मेटा टैग इज इंक्लूडेड इनसाइड द हेड टैग. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है.
उसके बाद मेटा टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। मेटा टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मेटा नेम, मेटा कंटेंट, मेटा कैरेक्टर सेट, HTTP इक्विवेलेंट, राइट। एंड HTTP का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सो यू मस्ट नो द फुल फॉर्म HTTP। फ्रॉम 11th standard we are studying HTTP stands for, right, hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol. So this is the full form. So this question is also asked in the board exam many times. HTTP stands for dash. So hypertext transfer protocol is the full form. चलो अभी हम देखते हैं कि मेटा के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। How the question is asked. See, the dash tag describes aspect of content of web page. Which tag is going to define the aspect of a content? That is meta tag. So include the triangle brackets. The dash tag is used by search engine to search information that is provided within the web page. So the search engine actually refers to the meta tag for searching any information regarding the web page. So meta tag. Dash will not be displayed on the web page. Metadata. Metadata cannot be displayed inside the web page, but my dear friends, metadata is displayed outside the web page. Dash tag is singular tag which carries information within its attributes. So meta tag. So meta tag is a singular tag, right? Meta tag is a singular tag. So singular tag मतलब हम उसको सिर्फ ओपन कर सकते हैं, उसको क्लोज नहीं कर सकते, right? So singular tag मतलब क्या, हम उसको okay. So the next important topic is the cascading style sheet. Cascading style sheet is a very important topic. Cascading style sheet topic. Why it is important? Because many objective questions, right? Many objective questions are based on the cascading style sheet, and some questions based on coding can also come for 5 marks regarding the cascading style sheet. So this concept is very important to understand, and if any question comes in your exam regarding cascading style sheet, you can attempt it. So what is cascading? सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आता है CSS का फुल फॉर्म. So अगर CSS का फुल फॉर्म आता है तो आपको पता होना चाहिए CSS का फुल फॉर्म क्या होता है. Cascading style sheet. The first question which comes in exam. CSS stands for dash, right? CSS stands for dash. So you should know the answer, that is cascading style sheets. So cascading style sheet क्या होता है basically? Cascading style sheet is used to make the web pages look attractive. So whatever web pages we are making using HTML, that web pages can be made attractive by using cascading style sheet. We can change the text color, we can change the background color, we can change the text style. All the styles can be given to the text by using the cascading style sheet. So cascading style sheet use करके एक्चुअल में आप आपके वेबसाइट को और थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो. एंड यूजर को वही चाहिए होता है, जब भी कोई वेबसाइट बनता है ना, माय डियर फ्रेंड्स, दैट वेबसाइट शुड बी अट्रैक्टिव. देन ओनली दैट विल अट्रैक्ट मेनी पीपल, देन ओनली द वेबसाइट विल बी गुड. तो ही अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी होगा, राइट? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर. सो सी, cascading style sheet basically 3 types के होते हैं. It is of 3 types. So what is the first type? Inline CSS. The second is embedded CSS or internal CSS, and third is external CSS. What is inline CSS? For example, I have a web page and I want to only give the style to one single line. सिर्फ एक लाइन को अगर मुझे स्टाइल करना है तो I will use the inline CSS. सुन लो फिर से. If I want to give the style to only one single line, inline CSS. If I want to give the style to one complete page, ये पूरे पेज को अगर मुझे स्टाइल करना है, right? I want to give the style to this complete page. Then I will use the internal CSS or embedded CSS. दोनों का नाम है क्या? Internal या embedded. Both are same. Internal CSS or embedded CSS. One question in your exam comes every year in the board exam, that is internal CSS is also called as dash CSS. Options are inline CSS, embedded CSS, external CSS, all of the above. So the right answer is embedded CSS. So the internal CSS is also called as the embedded CSS. So internal CSS या embedded CSS का मतलब होता है आप एक पूरे पेज को एक कॉमन स्टाइल दे सकते हो. एक पूरे पेज को एक कॉमन स्टाइल दे सकते हो. इनलाइन सिर्फ एक लाइन, पूरे पेज को नहीं, सिर्फ एक लाइन. वो पेज का एक लाइन को अगर आपको स्टाइल करना है, इनलाइन. पूरे पेज को स्टाइल करना है तो एम्बेडेड या इंटरनल. एंड अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है, दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, दिस इज पेज 3, दिस इज पेज 4 एंड सो ऑन,
एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास ऐसे पेजेस है और सारे के सारे पेजेस को एक कॉमन स्टाइल देना है, तो यू कैन यूज द एक्सटर्नल CSS। सो एक्सटर्नल CSS इज यूज्ड to give a common style to all the web pages, right? So you can see many pages, so all the pages can have the common style. So these are the types of CSS. अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला CSS यूज करके हम अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हाउ? सो दीज आर द CSS properties. So see, these are the CSS properties by which we can make our website look attractive. We can change the color, we can change the background color of any text, we can change the font weight. Font weight मतलब हम उसको bold कर सकते हैं। Font style मतलब हम उस text को italics में कर सकते हैं, underline कर सकते हैं। Text decoration means underline, overline, text align, left, center, right. Font family is Arial, Algerian, right? So we have many font families. We have Arial black. So we have many font families. So based on the font family, we can change the handwriting in short. Font size 10 pixel small, 30 pixel medium, 50 pixel large. So we can change the font size also. Letter spacing मतलब letters के बीच में भी space दे सकते हैं and उसको define करते हैं pixel. We can have the letter spacing, letter padding, border, background image. We can also have the background image. Margin left, margin right, margin center. So margins को भी हम change कर सकते हैं. So these all are the properties. And इस properties के कुछ तो values रहेगा, ठीक है? वो values को भी define करना है. After that we have CSS ID selector, we have CSS class selector, CSS ID selector, CSS class selector, universal selector, which is defined by your star, right? Yeah, then group selector, which is defined by your slash. Then we have positioning in CSS. Okay, we have float properties, we have display properties. So all the things in detail are given in your textbook. So इसके कुछ symbols होते हैं, इनके कुछ syntax होते हैं। ये symbols, ये syntax भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। In the lectures already we have discussed all these things. This is the revision lectures. इसको और डिटेल में हम जान नहीं सकते, नहीं तो ऑटोमेटिकली लेक्चर जो है अपना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स? चलो, सो नाउ CSS अगर आपको समझ में आ चुका रहेगा, तो CSS के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आता है? Dash CSS is used to apply CSS on a single line, inline, a complete page or a complete document, internal or embedded, multiple pages, external. Dash style sheet is used to apply CSS on single document or page. That can be internal is also the right answer, embedded is also the right answer. Internal CSS is written inside the style tag. So style tag के अंदर हम लोग CSS को define करते हैं। कौन सा CSS को? Internal CSS को. The dash style sheet is used when you want to make the changes on multiple pages, external. Dash style sheet facilitates to change the look of the entire website by changing just one file. External file को change कर दो, आपके सारे के सारे फाइल्स वैसे चेंज हो जाएंगे, आपने जो स्टाइल उसके अंदर डिफाइन किया है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूजेस डैश टैग ऑन एवरी पेज। लिंक, आपको लिंक करना पड़ेगा। इन शॉर्ट वी हैव टू हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक CSS में देने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। इन एक्सटर्नल CSS डैश टैग इज प्लेस्ड इनसाइड द हेड सेक्शन, लिंक टैग। External style sheet has a dash extension. This question comes in your board exam very commonly. External file का extension क्या? External CSS का extension क्या होता है? So external CSS का extension होता है .css. चलो, so after this we come to the next slide. Okay, the board exam question. See, board exam में 5 marks के लिए ऐसे question पूछते हैं. Okay, so like this questions are asked in the board exam. So let's see how the question comes. चलो, राइट HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिजिटल इंडिया। आपको क्या करना है? डिजिटल इंडिया इसको डिस्प्ले करना है, हैविंग अंडरलाइन यूजिंग इनलाइन CSS। सी, कुछ क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि आपको कौन सा CSS यूज करना है, एंड इन सम क्वेश्चंस इट इज नॉट मेंशन्ड, दे हैव ओनली टोल्ड यूज CSS। In such conditions, you will use any type of CSS which is comfortable or which is suitable for you. ऐसा CSS यूज करना जिसमें आप comfortable हो, ठीक है? So इस क्वेश्चन में तो मेंशन किया भाई inline CSS, तो आप inline CSS को ही फॉलो करेंगे. You cannot go to any other types. Add any two sentences about IT subject. Add any two sentences about the IT subject having a yellow color background.
फॉर द टेक्स्ट. चलो, सो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक टैग्स, राइट. सो बेसिक टैग्स क्या होता है? व्हाट आर द बेसिक टैग्स? सो बेसिक टैग्स बोलने के बाद फर्स्ट वी हैव टू राइट द HTML टैग. आफ्टर HTML टैग वी हैव टू राइट द हेड टैग, राइट. आफ्टर हेड टैग वी हैव टू राइट द टाइटल. सो टाइटल में क्या दे देंगे? डिजिटल इंडिया. दिस इज एक्चुअली नॉट द टाइटल, बट हमें वेबसाइट बनाना है सिमिलर टू द क्वेश्चन. सो हियर इन टाइटल वी कैन राइट एज डिजिटल इंडिया. ठीक है, डिजिटल इंडिया. दिस विल बी डिस्प्लेड इन अ टाइटल बार. डिजिटल इंडिया, राइट. सो डिजिटल इंडिया हम ऐसे लिख सकते हैं. क्लोज द टाइटल टैग, देन क्लोज द हेड टैग, राइट. देन ओपन द बॉडी टैग. हाँ, नाउ वी आर डिफाइनिंग द inline CSS. हम कौन सा CSS डिफाइन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? inline CSS. So inline CSS is defined inside the body section. जो लाइन को स्टाइल देना है उस लाइन के पहले आप inline CSS को डिफाइन कर सकते हो. बट अगर आपको इंटरनल CSS बोला रहता तो आपको डिफाइन करना पड़ता इनसाइड द हेड सेक्शन. एक्सटर्नल CSS इनसाइड द हेड सेक्शन. ओनली द inline CSS can be defined inside the body section, that too in front of the line where you want to give the style. सो बॉडी टैग ओपन कर दिया हमने. ठीक है, बॉडी टैग ओपन कर दिया. उसके बाद हमने क्या करना है? डिजिटल इंडिया को प्रिंट करना है, राइट. सो हम उसको एक हेडिंग रखते हैं. ठीक है, एंड डिजिटल इंडिया को प्रिंट करते हैं पेज के बीच में. अच्छा लगेगा ना? चलो, सो H1 टैग को यूज करके हम लोग डिजिटल इंडिया प्रिंट करते हैं. ठीक है, सो हम बोलते हैं ना H1 अलाइन, मतलब H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. सो आपका कंटेंट जो है ना पेज के बीच में रहेगा. ठीक है, और उसको स्टाइल भी देना है. सो टैग के सामने जब आप स्टाइल लिखते हो दैट इज कॉल्ड एज योर इनलाइन CSS. सो ये टैग आपने लिख लिया, बरोबर. टैग आपने लिख लिया, टैग के सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल. सो H1 स्टाइल. ठीक है, H1 स्टाइल इज इक्वल टू, सो व्हेन यू राइट द स्टाइल इन फ्रंट ऑफ द टैग देन दैट बिकम्स योर इनलाइन CSS, राइट. सो स्टाइल क्या देना है हमें? मेंशन किया रहेगा ना डिजिटल इंडिया हैविंग अंडरलाइन. सो आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आएगा. ठीक है, अंडरलाइन कहां पे आएगा? टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर. सो यू हैव टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन. एंड जब भी कोई स्टाइल डिफाइन करते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी. आई होप सो एवरीबॉडी नोस द सिंटैक्स फॉर CSS. दिस इज द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से वैल्यू जाते वक्त हियर यू हैव टू गिव द कोलन. Some students give the semicolon. No, you have to give the colon. Text decoration. Text decoration क्या था अपना? Underline. ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन इज अंडरलाइन. अगर आपको इसके आगे और कोई स्टाइल देना रहता तो आपको सेमीकोलन देना पड़ता, बट नाउ हमें इतना ही करना है, राइट. इसको बीच में लाएंगे. ये बस थोड़ा अट्रैक्टिव बनने के लिए. नाउ आई ब्रॉट द कंटेंट एट द सेंटर ऑफ द पेज जस्ट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव. एंड दिस इज द इंटरनल, दिस इज द इनलाइन CSS. टैग के सामने जब स्टाइल है इनलाइन CSS. चलो, यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज नहीं करना है. यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते हम लोग. यहाँ पे डबल कोट्स ओपन किया, डबल कोट्स क्लोज करना पड़ेगा. यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा, मतलब एंड ऑफ CSS, एंड देन वी विल क्लोज दिस टैग. हाँ, H1 को तो हमने स्टाइल दे दिया माय डियर फ्रेंड्स. H1 को तो हमने स्टाइल दे दिया है, राइट. बट इसके अंदर डिस्प्ले क्या करना है? डिजिटल इंडिया. सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिजिटल इंडिया. ठीक है, डिजिटल इंडिया लिखना पड़ेगा. एंड आपको क्या करना पड़ेगा? H1 को क्लोज भी करना पड़ेगा. ठीक है, H1 को क्लोज भी करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी दिस line is your inline CSS. when you write the tag के अंदर आप जब स्टाइल डिफाइन करते हो, स्टाइल का प्रॉपर्टी, स्टाइल का वैल्यू एंड एक्चुअल कंटेंट ऑफ द inline CSS. So this is your inline CSS. So inline CSS हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे. ठीक है, inline CSS को ऐसे डिफाइन किया जाता है. ठीक है, चलो. सो आफ्टर डिस्कसिंग द inline CSS, और क्वेश्चन अपना कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, और अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, सो आगे का भी कोडिंग कंप्लीट करते हैं. Add any two sentence about IT subject below having yellow background for the text. मतलब आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए. क्वेश्चन को समझो. चलो, सो हियर आई विल यूज द पैराग्राफ टैग. ठीक है, पैराग्राफ को स्टाइल देना पड़ेगा ना. इनलाइन CSS यूज करना है ना. पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, सो बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो. मैडम बैकग्राउंड, अभी CSS के अंदर BG कलर मत लिखना. CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर पूरा लिखना होता है. BACKGROUND, बैकग्राउंड डैश कलर COLOR. वैल्यू दे लिख लिए कोलन. कलर कौन सा अपना? येलो. देन क्लोज द ब्रैकेट कॉमा. सो दिस इज द inline CSS. फिर से रिवाइज करते हैं. चलो फिर से रिवाइज करते हैं. बाबा टैग
टैग के सामने अगर आप स्टाइल टैग दोगे तो दैट बिकम्स इनलाइन सीएसएस प्रॉपर्टी. Background color is a property and yellow is the value. Background color is a property and yellow is the value. ठीक है, चलो. So done almost, right? अब इसके अंदर आपको 2 सेंटेंस लिखना पड़ेगा regarding your IT subject. यहाँ पे मैंने मेंशन किया, write any 2 sentences about your IT subject. So here you have to add a paragraph. ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ उल्टा सुल्टा मत लिख देना, लेने के देने पड़ जाएंगे. आईटी सब्जेक्ट, अभी आईटी सब्जेक्ट का पेपर आपका चेक कौन करेगा? आपका आईटी टीचर. और आईटी सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपने उल्टा सुल्टा लिख दिया तो खत्म. ठीक है, सो राइट समथिंग गुड. आईटी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, right? IT is a scoring subject because 60 marks is for the objectives. IT subject actually helps us to increase our percentage. This is a percentage booster. ऐसे थोड़ा अच्छे से लिखने का, बराबर? अपने सब्जेक्ट को अच्छे से मॉडिफाई करके लिखने का. ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. When someone is going to read this, definitely everybody reads. Definitely the examiner reads कि आपने क्या लिखा है. ठीक है, ऐसे मत लिख देना IT सब्जेक्ट ऑनलाइन होता है तो मतलब उल्टा सुल्टा कुछ लिखना नहीं है, अच्छा लिखना है. ठीक है, चलो. सो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस लिख देना. अभी के लिए मैं डैश 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 कर देता हूँ बिकॉज 2 सेंटेंस आप लोग लिख लेना. 2 सेंटेंस लिख के होने के बाद क्लोज द पी टैग. अरे पी टैग ये सब किसके अंदर चल रहा है? पी. सो पी टैग को क्लोज कर देना. नाउ वी हैव टू क्लोज द टैग्स. सो पी टैग क्लोज हो गया, H1 टैग उधर क्लोज हो गया. नाउ वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग. Now we have to close the body tag and we have to close the HTML tag. Next time लिखा तो भी चलेगा. And we have to close the HTML tag. So this question was asked for 5 marks in March 22 and 23. बस इतना ही कोडिंग है, इतना ही कोडिंग है. इतना कोडिंग करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेगा? 5 marks. So this code was 5 marks. So if you want, you can just note it down the code. आप इस वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके कोड को लिख लो. चलो. So after this we go to the next question. हाँ, और एक क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में कैसे आता है. देखो सीएसएस के ऊपर कंपलसरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. सो प्रैक्टिस इज मस्ट. Write HTML program to display cyber world having Arial font, background color cyan. Add 2 advantages having blue color for the text. Add 2 advantages of cyber world having blue color for the text. चलो. सो इसका कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो हमें करना क्या है? बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया क्या कौन सा सीएसएस यूज करना है. इट इज नॉट मेंशन व्हिच टाइप ऑफ सीएसएस वी हैव टू यूज. सो हियर यू कैन यूज इनलाइन, इंटरनल. एक्सटर्नल मत यूज करना बिकॉज वहां पे 2 पेज बनाना पड़ेगा, अलग अलग कोडिंग करना पड़ेगा. प्रेफर्ड क्या है? इनलाइन यूज करो या तो इंटरनल यूज करो. प्रीवियस क्वेश्चन I had explained by inline CSS. Now this question I will explain you using the internal CSS. Okay. So first we must define the basic tags. So HTML basic tags has some marks, right? So HTML head, title, relevant content देने का. Cyber world. Question में क्या बोला? वही दे दो title. Cyber world. Close the title. Close the head tag. That's the rule. Here, wait. Here we have to use which? हम कौन सा CSS डिफाइन कर रहे हैं? इंटरनल CSS. इंटरनल CSS मैं आपको स्टाइल टैग, हेड टैग के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, राइट? सो हियर हमने टाइटल डिफाइन कर दिया बट उसको हेड को क्लोज नहीं करेंगे. देन वी आर गोइंग टू यूज द स्टाइल टैग बिकॉज वी आर यूजिंग which CSS? We are going to use here इंटरनल CSS. हम लोग यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज करने वाले हैं. सो इंटरनल CSS को यूज कर रहे हैं. इसके लिए आपको स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा. स्टाइल टैग आपको हेड टैग के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? चलो. सो स्टाइल टैग को आपने डिफाइन कर दिया. स्टाइल टैग में आपको साइबर वर्ल्ड लिखना है, राइट? सो साइबर वर्ल्ड वी विल राइट इन H1. सो H1 के अंदर लिख लेंगे. सो उसका स्टाइल डिफाइन कर लेंगे. सो कर्ली ब्रेस ओपन, we are having Arial font. So here we have to give the Arial font. So Arial font को कैसे डिफाइन करेंगे? Font family. Then we have to give the colon. Font family अपना क्या है? Arial. ठीक है, font family अपना क्या है? Arial. ARIAL. Semicolon देंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाएगा. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. वी हैव टू गिव मोर ऑन प्रॉपर्टी दैट इज बैकग्राउंड कलर रेड. और इसी H1 का बैकग्राउंड कलर अपना रेड भी रहेगा. बैकग्राउंड कलर सियान. ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या बोले? सियान. इट्स अ लाइट ब्लू कलर. थोड़ा ठीक है, सियान कलर देना आपको बैकग्राउंड कलर को. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगा. सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या बोले? बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड
डैश कलर COLOR कोलन CYAN, ठीक है, सेमी कोलन, क्लोज डबल इनवर्टेड कॉमा। डबल इनवर्टेड कॉमा भी मैंने क्लोज क्यों किया, बिकॉज बस इतना ही मुझे देना है, इसके आगे मुझे और जाना नहीं है। सॉरी, हियर वी कैन नॉट क्लोज डबल इनवर्टेड कॉमा, हियर ओनली we have to give the semicolon, right? यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कहाँ पे होगा, इन इनलाइन स्पेसेस, राइट? सो एक्चुअल को हमने स्टाइल दे दिया जो चाहिए था, राइट? साइबर वर्ल्ड वो हम बाद में ऐड करेंगे बॉडी के अंदर, बट अभी के लिए जो स्टाइल था वो हमने दे दिया। एरियल फॉन्ट देना था, दे दिया एरियल फॉन्ट। बैकग्राउंड कलर सियान देना था, दे दिया। चलो अब हमें दो एडवांटेजेस ऐड करना है और उसका टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट का कलर ब्लू रहेगा। सो हम एक पैराग्राफ यूज करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ हम सिर्फ बोले कलर, बैकग्राउंड कलर बोलना नहीं है, ओनली कलर। वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, राइट? दे हैव नॉट टोल्ड फॉर द बैकग्राउंड। सो पैराग्राफ कलर कोलन ब्लू, कलर क्या है ब्लू, BLUE, बस दैट्स इट। स्टाइल हमने डिफाइन कर दिया है, सो क्लोज द स्टाइल टैग क्लोज कर दो। नाउ वी कैन क्लोज द हेड टैग, सो दिस इज योर CSS। नाउ एक्चुअल कोडिंग इज पेंडिंग, सो वी हैव टू ओपन द बॉडी टैग, एंड बॉडी टैग के अंदर हम लोग अभी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ टेल मी, अभी यहाँ पे मैं बाकी का कोड लिख देता हूँ, ठीक है? नाउ टेल मी, बॉडी टैग के अंदर हमें कोडिंग करना है, व्हिच टैग्स कैन बी यूज्ड। स्टाइल किसको दिया है, H1 और P। सो हम ये दो टैग्स का यूज करेंगे। आपको अगर H2 यूज करना है आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट फॉर H2 आपको कोई स्टाइल नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने वहां पे स्टाइल मेंशन किया ही नहीं है, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 टैग यूज करेंगे, और H1 टैग के अंदर कुछ मेंशन नहीं करना, बिकॉज H1 को हमने स्टाइल ऑलरेडी दे दिया है। हाँ, H1 के अंदर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, साइबर वर्ल्ड, ठीक है, साइबर वर्ल्ड। सो ये डिस्प्ले होना चाहिए H1 के अंदर, क्लोज H1, और पैराग्राफ यूज करेंगे बिकॉज स्टाइल किसको दिया है रे, पैराग्राफ को दिया है ना। चलो पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना था, मैं दो एडवांटेजेस ऑफ साइबर वर्ल्ड, सो डैश, मैं अभी डैश कर दो, बट इन अ पेपर यू हैव टू राइट एनी टू एडवांटेजेस। क्लोज द P टैग, close the tags and close the body tag, and then close the HTML tag, close the body tag and close the HTML tag. So this question is also asked in a board exam for how many marks, for 5 marks. So 5 marks के लिए ये question आता है, so just note it down. चलो, so after completing the CSS, we go to the next concept, that is list. One of the very easiest concepts, सबसे easy concept है list. So what is list? List is nothing but it is used when we want to arrange the elements in a proper sequence. जब हमारे पास कोई elements रहेगा ना, हम उनको proper sequence में arrange कर सकते हैं. So सबसे पहला type का list क्या है अपने पास? So if we have the elements and if we want to arrange the elements in a proper sequence, we can make the use of list. Ordered list, सबसे पहले क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, बाय द टैग OL को यूज करके आप ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो। देखो अगर मैंने ऐसे बोला 1 2 3 4, सो दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, बट नाउ टेल मी A B C D, is this ordered list? Yes my dear friends, this is also the ordered list, because you can see a particular sequence. A list which has a sequence, that list is called as your ordered list. But ABCD को स्टार्ट करने के लिए आपको कोडिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, OL टाइप मेंशन करना पड़ेगा। OL टाइप is equal to A, means your ordered list will start like this. We can give like this also, Roman number 1, Roman number 2, Roman number 3, Roman number 4. So आप ऐसे भी दे सकते हो, this is also the ordered list, but इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, OL टाइप is equal to रोमन नंबर में बांध देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये स्टार्ट टाइप करने से आपको ऐसे मिल जाएगा। सो दिस इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट। सिमिलरली वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ वी कम टू द अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। ये जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखा, वैसे अपने पास अनऑर्डर्ड, वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट आल्सो। सो जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को OL से डिफाइन किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, UL। सो UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का और एक नाम क्या है, बुलेटेड लिस्ट, बिकॉज हियर देयर इज नो एनी सीक्वेंस। व्हेन अ लिस्ट हैज नो एनी सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। बाय डिफॉल्ट UL इज मेड लाइक दिस। बाय डिफॉल्ट इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्क, इसको हम डिस्क बोलते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डिस्क के फॉर्म में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डिस्क के फॉर्म में वी कैन गेट इट लाइक दिस आल्सो, स्क्वायर। हम इसको ऐसे स्क्वायर से मिला सकते हैं, स्क्वायर एक्चुअली फिल अप रहेगा, ठीक है। स्क्वायर एक्चुअली ऐसे फिल्ड अप रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्क्वायर्स में लाना है तो आपको कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा, UL टाइप इज इक्वल टू
स्क्वायर, अगर आपने यूएल टैग इक्वल टू स्क्वायर दे दिया तो आपको ऐसे मिल जाएगा। हाँ बट अगर आपको ऐसे चाहिए रहेगा तो कुछ नहीं देना है, अगर आपको ऐसे रहेगा तो आपको कुछ देना नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यूएल आपको कैसा आता है, ऐसे ही आता है। बाय डिफॉल्ट यू विल गेट द यूएल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, दैट इज कॉल्ड एज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। देन वी हैव द डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग होता है, यहाँ पे हेडिंग होता है, जैसे कि समझो मुझे आईटी को डिफाइन करना है, सो दिस इज माय हेडिंग एंड व्हेन आई एम गोइंग टू डिफाइन योर आईटी, ठीक है, सो यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन दूंगा, आईटी का डेफिनेशन दूंगा, राइट। सो दिस इज माय हेडिंग, सो हेडिंग को हम डीएल टैग में रखेंगे। एक्चुअली डीएल टैग नहीं, डीएल टैग मतलब डेफिनेशन लिस्ट टैग, उसके अंदर फिर हम लोग दो टैग यूज करते हैं, डीडी टैग एंड डीडी टैग। डीडी मतलब डेटा डेफिनेशन, ये एक्चुअल डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं इनसाइड द डीडी टैग। सो दिस एक्चुअल डेफिनेशन, सी एक्चुअल डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं इन द डी टैग, एंड ये जो था ना उसका हेडिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं इन द टैग कॉल्ड एज डीटी टैग। डीटी का मतलब होता है डेटा टर्म, याद रखना। डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट, डीडी मतलब डेटा टर्म एक्चुअल डेफिनेशन, एंड डीटी मतलब टर्म उसका हेडिंग, ठीक है, हेडिंग जैसे कि आईटी इसका हेड और इसका डेफिनेशन आएगा डीडी टैग के अंदर, ठीक है। चलो सो ऑलमोस्ट हमने लिस्ट को डिस्कस कर लिया है, राइट। चलो सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको लिस्ट के ऊपर भी आ सकता है। सबसे इजी, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया, यू कैन अटेम्प्ट इट विद फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट, ठीक है। सीएसएस में आई कैन अंडरस्टैंड सम स्टूडेंट्स may have some confusion regarding CSS because lot of styles, lot of attributes, a lot of text, lot of font size, lot of things are there, but here OL type, that's it, right? So ये आपको और easy जाएगा। चलो इसका कोडिंग करते हैं। Write HTML program to create list of 5 flowers and 5 fruits, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट लिस्ट ऑफ, एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, दिस क्वेश्चन एक्चुअली टाइप करते हुए थोड़ा मिस्टेक हो गया। आई जस्ट मॉडिफाई द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम एक्चुअली ऐसा पूछा जाता है, राइट अ HTML कोड टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर 5 फ्रूट्स एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर 5 फ्लावर्स, ठीक है। द क्वेश्चन एक्चुअली कम लाइक दिस, ठीक है। सो नो इश्यूज, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये रख लेंगे और चलो कोई भी कलर लेंगे, ठीक है। चलो सो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ द क्वेश्चंस कम, राइट अ ये कलर थोड़ा एक्चुअली विल टेक द व्हाइट कलर, ठीक है, वो बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, राइट अ HTML कोड टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर 5 फ्रूट्स, ठीक है, फॉर 5 फ्रूट्स एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर 5 फ्लावर्स। सो क्वेश्चन ऐसा था, एक्चुअली वो टाइपिंग मिस्टेक था क्वेश्चन का, उसको इग्नोर करो। क्वेश्चन आपका ऐसा है, राइट HTML कोड टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट से 5 फ्रूट्स बनाना है एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट से 5 फ्लावर्स बनाना है। यार बहुत ही सिंपल है। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स। चलो इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और कौन सा कलर अच्छा रहेगा, चलो विल ट्राई दिस। ओके दिस इज द ब्राइट कलर, सो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो सो राइट HTML कोड टू क्रिएट द ऑर्डर्ड लिस्ट। सो सबसे पहले बेसिक टैग्स तो रहेगा, सो HTML टैग, राइट। आफ्टर HTML टैग वी हैव टू राइट द हेड टैग, देन वी हैव टू राइट द टाइटल टैग। टाइटल में इतना ले रहे सिर्फ लिस्ट, बिकॉज़ वी आर क्रिएटिंग द लिस्ट, राइट। वो दोनों लिस्ट बना रहे हैं तो आप नेस्टेड लिस्ट भी दे सकते हो टाइटल। व्हेन वी यूज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट, राइट। सो यहाँ पे टाइटल यू कैन गिव नेस्टेड लिस्ट आल्सो, दैट इज नॉट इशू। क्लोज द टाइटल, then close the head tag, then we open the body tag। चलो लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है फॉर 5 फ्रूट्स, ऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL टैग, सो OL टैग से हम 5 फ्रूट्स का नाम डिफाइन करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक्चुअल कंटेंट डिफाइन करने के लिए लिस्ट। सो हाउ मेनी फ्लावर्स यू हैव टू डिफाइन, 5। सो li मींस लिस्ट एंड लिस्ट। चलो सो फर्स्ट लिस्ट के अंदर 5 फ्रूट्स, चलो लेट्स टेक एप्पल, ठीक है। क्लोज द लिस्ट, बिकॉज जब आप नेक्स्ट लिस्ट को जाओगे तो आपको प्रीवियस लिस्ट क्लोज करना पड़ेगा। OL क्लोज नहीं होगा, OL एकदम लास्ट में क्लोज होगा। एप्पल, देन विल टेक मैंगो, क्लोज द लिस्ट,
एप्पल, मैंगो, और क्या है, बनाना, ठीक है, क्लोज द लिस्ट, और क्या है बाबा, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, क्लोज द लिस्ट, एंड यार क्या फ्रूट्स है, ग्रेप्स, क्लोज द लिस्ट, ठीक है। इफ यू रिमेंबर ये हमने क्लासरूम में भी किया है, आई हैव टेकन दिस कोड इन द क्लासरूम आल्सो, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत फनी फनी फ्रूट्स का भी नाम निकाला था, ठीक है। चलो, सो ये था अपना लिस्ट। ऑयल का काम कंप्लीट हो गया, सो ऑयल का काम कंप्लीट होते आप ऑयल को क्लोज कर देना। चलो, सो अपना आधा कोडिंग कंप्लीट हो गया। नाउ और क्या बोला है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 5 फ्लावर्स, सो वी हैव टू क्रिएट द 5 फ्लावर्स यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको यूएल टैग यूज करना पड़ेगा। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स वी हैव टू डिफाइन 5, सो 5 टाइम्स आई विल राइट एल आई नेम ऑफ फ्लावर रोज, क्या बात है, पहले फ्लावर रोज आ गया अपना। चलो, रोज लिस्ट को क्लोज कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड फ्लावर, अरे यार फ्लावर के नाम रोज, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, और क्या फ्लावर्स होते हैं अपने पास, ठीक है, जो भी फ्लावर है, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बहुत सारे फ्लावर के नाम मेरे माइंड में आ रहे हैं और वो एक्चुअली मैसअप हो रहा है, ठीक है। लिली, वी हैव जैस्मिन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। सनफ्लावर, ठीक है। आप भी अच्छा अच्छा नाम लो। एक स्टूडेंट बोलता है चंपा लिखो, ठीक है, चंपा ऐसे कुछ नाम मत लिख देना, अच्छा फ्लावर का नाम लिखो रे। चंपा भी अच्छा है बट थोड़ा स्टैंडर्ड फ्लावर होना चाहिए, मार्क्स भी स्टैंडर्ड मिलेगी, ठीक है। हाँ, देन लिस्ट, देन वी कैन राइट जैस्मिन, ठीक है, फ्लावर ही है ना, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। देन वी कैन राइट, अरे यार, ठीक है, रोज, सनफ्लावर लिखो। उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे भी मैं डैश कर दो, बहुत सारे फ्लावर्स मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। डैश कर दो मतलब आप वहाँ पे ऐड कर लेना 1 2 3 4 और एक फ्लावर, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख लेना फ्लावर के नाम, ठीक है। क्लोज द लिस्ट, ठीक है। एक बार आपके 5 फ्लावर्स हो गए, देन क्लोज द यूएल, राइट। चलो, अभी कौन सा टैग क्लोज करना बाकी है, बॉडी टैग एंड एचटीएमएल टैग। देन क्लोज द बॉडी टैग, then close the body tag, and then close the HTML tag. Done. So this question comes in exam for 5 marks. So 5 marks के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। This question is asked in the year March 2022 and March 2023, and highest probability which can be asked in the year March 2024 also. ठीक है, चलो। So just note down this. Okay, chalo. So we'll go to the next concept. Chalo. Write a HTML program to create unordered list of 2 languages used for speaking and this was ordered list, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में रीड करते कोई मिस्टेक मत कर देना। Write a HTML program to create an ordered list of 2 languages, ठीक है, of 2 languages used for speaking and unordered list having 3 computer languages. In short आपको क्या करना है, आपको ordered list बनना है। ordered list का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं, ठीक है। This will be little more better. What we have to do, we have to create an ordered list for 2 languages, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग करते हैं, ठीक है। So ordered list for 2 languages, हमें क्या क्रिएट करना है, ordered list we have to create for 2 speaking languages or 2 languages which you speak, ठीक है। 2 language which you speak, मतलब अपना आउटपुट में ऐसा है 1 2। चलो यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे आउटपुट भी वाला कर देते हैं 1, जिसके इंग्लिश लेंगे, 1 will write English and second will write Hindi. So we have to do like this, ठीक है। So 1 English, 2 Hindi. So this is ordered list. And more, what was the question saying? Use of speaking and unordered list having 3 computer languages. Okay. So हमें क्या create करना है, unordered list. यहाँ पे क्या करना है, unordered list. Unordered list में we have to add 3 computer languages. 3 computer languages. ठीक है, we have to add the 3 computer languages. So इसके नीचे आपको क्या करना है, unordered list. Unordered list. So this is your unordered list, right? So unordered list में आपको क्या करना है, computer language add करना है, जैसे कि we can add C++, we can add HTML, right? We can add the JavaScript. So अपना output actually ऐसे बनाना है. So this is the output which is being expected in the board exam.
समझे क्या क्वेश्चन? चलो सो इसका कोडिंग करते हैं हम लोग। सो इसका भी हम कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई विद अनदर कलर नाउ। ये ठीक है, चलो सो कोडिंग कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक टैग्स, ठीक है। सो बेसिक टैग्स अभी आपको ऑलमोस्ट पता है, HTML हेड, इसको भी मार्क्स होते हैं। सो आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज आल्सो हैज सम पर्टिकुलर मार्क्स। टाइटल, सो टाइटल क्या लेंगे? लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट दिया तो भी चलेगा। क्लोज द टाइटल। आफ्टर क्लोजिंग टाइटल वी हैव टू क्लोज द हेड टैग, देन वी हैव टू ओपन द बॉडी टैग। हाँ, बॉडी टैग ओपन करने के बाद हमें क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट द ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? वी हैव टू क्रिएट व्हाट? वी हैव टू क्रिएट द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ 2 लैंग्वेजेस। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज द OL टैग, OL टैग, राइट? OL टैग, OL के अंदर हम 2 लिस्ट डिफाइन करेंगे बिकॉज़ वी हैव टू गिव द 2 लैंग्वेजेस फॉर स्पीकिंग। एक के अंदर हम लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है, और तुरंत लिस्ट को क्लोज करना है। देन we'll use the second list for हिंदी, ठीक है। we'll close the list, then we'll close the OL tag because OL का काम complete, then we have to close the OL tag. Now we have to open the UL tag and a very important note, don't use the break tag because by default the list comes on the next line, so no need to use the break tag, ठीक है। सम स्टूडेंट्स थिंक कि यार ये एक ही लाइन में जाएगा तो हम यहाँ पे बीच में ब्रेक देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो लिस्ट में बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे आता है, सो आपको ब्रेक देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ओपन करना है UL, ठीक है। UL के अंदर हमें क्या करना है? 3 लिस्ट ऐड करना है, ठीक है। काम करते हैं, UL को हम एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने OL किया, नाउ हियर विल क्रिएट द UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सो लिस्ट, सो फर्स्ट इसके अंदर हमने लिखा C++, क्लोज द लिस्ट, देन लिस्ट, here we are going to write HTML, close the list, then we are going to write JavaScript, close the list and close the UL and close the unordered list, then close the body tag and then close the HTML tag. That's it. चलो, so this question was also asked in the board exam. इतना ही coding था my dear friends, only this much code will give you how many marks? Will give you 5 marks, ठीक है। So if anybody wants to write, can write it down. Screenshot लेना है तो screenshot ले लो। चलो, so this question was asked in the board exam, so how many marks? 5 marks. चलो, so ordered list, unordered list के ऊपर ऐसे questions आता है, ठीक है। So then dash type of OL tag specifies the numbering type for the used items. So आपको अगर numbering types को specify करना है तो हम क्या करते हैं? OL type. So answer क्या है? Type, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। डैश लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट कौन होता है? अपना UL, ठीक है। सो हियर वी हैव ट्राइड द अनऑर्डर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट और के क्वेश्चन में डैश लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल कौन हो सकता है? अपना ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उन्होंने पूछा डैश लिस्ट, तो आपको OL टैग भी लिखना है, ठीक है। चलो, सो टू डिफाइन डेफिनेशन लिस्ट डैश टैग इज यूज्ड। डेफिनेशन लिस्ट मतलब DL, ठीक है। डिफाइन द टर्म के लिए DT, डेटा डेफिनेशन के लिए DD. So this type of questions are asked in the board exam. So now inserting audio and video. So in HTML page we can insert the audio file by using the audio tag. We can insert the video by using the video tag. हम audio tag से audio use ऐड कर सकते हैं, video से video ऐड कर सकते हैं. Now in our computer there can be many files, so we can use the source src to define the exact location and path of the file which we want to add in our web page. तो देखो यहाँ पे attributes में source आ गया, autoplay आ गया. Autoplay मतलब once the audio is going to end or again it is going to start. Controls में हम define कर सकते हैं क्या क्या controls मतलब आपको play, pause, volume up, volume down ये सारे buttons में लेके by controls, attribute, loop चलते रहेगा. 3 बार रिपीट करना, loop is equal to 3 दे दो, 3 बार चलते रहेगा. ठीक है. source tag is used to exactly define the location and path of the audio file. Same goes for the video. वीडियो के पास भी ऑलमोस्ट सेम एट्रीब्यूट्स है. ठीक है. चलो, सो ऑडियो वीडियो के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इमेज मैपिंग. इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट क्या है? इमेज मैपिंग. इमेज मैपिंग में ना एमसीक्यू 3 करेक्ट आंसर में एक क्वेश्चन हमेशा एवरी ईयर कम्स. dash dash and dash tags are used in image mapping in HTML5. So 3 tags are basically used in image mapping. The first tag is img tag. img tag, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चाहे तो थोड़ा img tag is used to add the image. See, यहाँ पे आपको img tag यूज करना पड़ेगा इमेज को ऐड करने के लिए. ठीक है. img tag is used to add the image. पहला टैग याद रखना img tag. सेकंड टैग is map tag. map tag is used to यूज मैप एट्रीब्यूट यूज करने के लिए. ठीक है. एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए. एंड एरिया टैग
to exactly make the hotspot. The clickable areas in the image map is called as dash. This question also comes in your board exam many times. I repeat again, the clickable area in the image map is called as dash. The answer is hotspot. So जो भी clickable areas होता है ना उसको हम बोलते हैं hotspot. When we click on the hotspot, we exactly go to a new page that is called as image mapping, right? So these are the attributes. href, hyperlink reference. href का मतलब क्या होता है? Hyperlink reference. Shape, chords means coordinates, and alt attribute. So these are the attributes of your image tag. Then we have inline frames. हाँ, inline frames. ये भी बहुत एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है. Inline frames is created by dash tag. Answer is iframe tag. So iframe यूज करके हम लोग inline frame को बना सकते हैं. iframe का मतलब क्या होता है? I मतलब inline. I मतलब क्या? Inline frame. So inline frame is a customizable frame which we can use or which we can create as per the user's choice. इसके ऊपर एक कोडिंग है, हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कम्स वेबसाइट होस्टिंग. सी, ओनली क्रिएटिंग द वेबसाइट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आफ्टर क्रिएटिंग द वेबसाइट, होस्टिंग द वेबसाइट इज आल्सो साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट. सो वंस यू क्रिएट द वेबसाइट, माय डियर फ्रेंड्स, दैट वेबसाइट ओनली रिसाइड्स ऑन योर कंप्यूटर. व्हेन यू होस्ट द वेबसाइट, that website is visible to everybody and that website can be accessed by a URL. So each and every website has a unique URL. URL means the address of the website, and the user on the internet can access to the website by making the use of the URL www.amazon.com. This is the URL for Amazon. So by using this URL, I can exactly visit to the Amazon's web server or Amazon's web page. So this kind of website hosting is very important, and website hosting can be done by 3 types. That is shared hosting, free hosting, and dedicated hosting. Shared hosting is mostly used for small websites. So if you have a small website, so for small websites we use a shared hosting. Free website means it is not 100% free. This question comes in a true or false. Free hosting is free of cost. Now many of the students think free hosting means free, so the answer is true. False है वो. ठीक है, free hosting is free only for limited period of time. After limited period of time, that has to be paid. ठीक है, and then we come to the dedicated hosting. Dedicated hosting is actually for the large server. If you are going to make a large website which has a dedicated server, then you can use the dedicated type of hosting. ठीक है, so small website के लिए shared hosting. Free मतलब only for limited period of time. For large websites, you can use dedicated hosting. So these are the types of website hosting in your HTML. So by this way we can host our website over the internet. Again I repeat, not only creating the website is important, hosting is also important. So this is the last part of the chapter and almost we have completed the theory. So इस chapter का हमने theory almost complete कर लिया है, and we have to only revise one question which is asked in the board exam. So this question is actually asked in the board exam. So देखो iframe के ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, so what is this? We'll discuss. Write HTML program to insert iframe on a web page using abc.html. They have already given a source file. हमें iframe create करना है. iframe मतलब inline frame. ठीक है, inline frame मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझिए आपका आउटपुट है ना. I want to add a frame. Frame मतलब क्या है? Only this much part. Only this much part. This is your frame. ठीक है, अब ये हम स्पेसिफाई करेंगे. सिर्फ इतना पार्ट कैसे का सिलेक्ट करेंगे? बाय स्पेसिफाइंग द हाइट एंड विड्थ. सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? फिर इसके अंदर कोई एड्स मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट्स या कोई चीज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, या यहाँ पे और एक वेबसाइट डिस्प्ले कर सकते हैं. दिस इज योर वेबसाइट नंबर 1 and inside this frame we can display website number 2 or we can display any web online advertisements etc. So that is your iframe. So इसको बोलते हैं iframe. ये जो रहेगा ना, ये रहेगा अपना iframe. Means this is your inline frame and this is your main frame, or you can say this is your actual web page, right? चलो इसके लिए कोडिंग करते हैं. सबसे पहले बेसिक टैग्स लिखना पड़ेगा, right? So first HTML, second head, third title. This is fixed pattern. This pattern cannot be changed. Title हम क्या बोलेंगे? iframe बोलेंगे because we are creating an inline frame. Close the title. After closing title, we have to close the head tag, right? Then we have to open the body tag. ठीक है, बॉडी टैग ओपन करेंगे. बॉडी टैग ओपन करने के बाद हम बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करेंगे iframe. इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे iframe src. सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा iframe का सोर्स.
So what is the source of iframe? Already I mentioned abc.html. So here we have write abc.html, right? और उन्होंने क्या mention किया है as a source file for inline frame? Size of inline frame should be 200 into 200 pixels. So 200 is the height and this 200 is the width. ठीक है, height and width को भी specify करना है, ठीक है? So source specify कर लिया, then we can say height. ठीक है, height is equal to 200. No need to write the pixel here. Pixel लिखने की जरूरत नहीं है. Our computer by default take the value in the pixels. So height is equal to 200. Then we will specify width. Width is equal to, ठीक है? So width is equal to 200. ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 200 एंड विड्थ इज आल्सो इक्वल टू 200 एंड अपना सोर्स क्या रहेगा abc.html. ओके, सो दैट्स इट. इतना हमें कर रहा था, मतलब अपने आउटपुट में ऐसे फ्रेम बन जाएगा विद 200 into 200 का उसका पिक्सेल्स रहेगा एंड उसके अंदर ये पेज डिस्प्ले होगा, abc.html पेज डिस्प्ले होगा. बस इतना ही कोडिंग करना है और कुछ बोला नहीं है. क्लोज द iframe टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा. क्लोज द बॉडी टैग and close the HTML tag. That's it. Only this much coding was expected and इस पूरे coding में पूरा खेल इधर है. Only this one line. बाकी आपको पता था रे, बाकी सब चीजें आपको पता था ना. बेसिक टैग को क्लोज करना, बाकी सब चीजें पता था. Only this one line was very important in this and this is actually going to give you how many marks? 5 marks and this was asked in the year March 2022. So if anybody wants to write, you can just note it down. So after this we come to the end of the first chapter. So my dear friends, here we have revised the chapter number 1 in detail and we have revised actually chapters तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लेक्चर्स में, बस ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर था. ठीक है, सो रिवीजन लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया विद द बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी आपको करना क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, आप बस मेरी बात सुनो. आपको 90 के ऊपर 95 90 इजीली मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स. आपको करना क्या है, सी आई हैव मेंशनड हियर HSC बोर्ड IT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर एंड इट्स PDF आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगा. दैट PDF कंटेन्स ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज आस्क्ड इन अ बोर्ड एग्जाम एंड और एक PDF रहेगा, उसके अंदर रहेगा सारे HTML की कोडिंग जो भी आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा है. सो ऑल द कोडिंग व्हिच इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, ऑल द कोड्स आर गिवन इन द सेकंड PDF. सो टोटल 2 PDF है, एक के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स और एक PDF के अंदर सारे के सारे कोडिंग. डू वी नीड टू डू द आंसर फॉलोइंग? इस चैप्टर का आंसर फॉलोइंग में करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इस चैप्टर में आंसर फॉलोइंग पूछते ही नहीं है, तो क्यों करना है? सो सारा का सारा फोकस आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होना चाहिए एंड आपके 5 मार्क्स के कोड के ऊपर होना चाहिए. सो सम कोडिंग यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कोडिंग करवाया, बाकी कोडिंग आपको रिवाइज करना पड़ेगा. इफ एनी डाउट्स, इफ एनी क्वेरीज, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर डाउट्स एंड वी टुगेदर विल सॉल्व योर डाउट्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली रिमेंबर द टारगेट टुडे इटसेल्फ. इमीडिएटली कंप्लीट द, देखो पहले टेक्स्ट बुक रीड करो. सुनो मेरी बात, पहले टेक्स्ट बुक रीड करो. TPS है तो TPS रीड करो, अदरवाइज मैंने TPS के ही ऑब्जेक्टिव्स को स्कैन करके आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको रीड कर लो. वंस यू कंप्लीट दिस देन यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर चैप्टर 1 एंड यू ऑल नो दिस चैप्टर 1 हैज अ वेटेज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स. सो 20 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका बोर्ड एग्जाम का ऑलमोस्ट डन हो जाएगा. ठीक है, सो एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स. वी हैव कंप्लीटेड विद चैप्टर 1 by today evening or by tomorrow. We will come soon with the chapter number 2, then we'll go with the chapter number 3, chapter number 4, chapter number 5 and we come with the chapter number 6. So before your board exams we will complete all the chapters with one shot revision. Chalo, thank you so much.